Hello to all my viewers present here. My name is Tarandeep Singh Kukreja. I'm an ex-officer cadet of IIM Dehradun, and here are some of my achievements which is listed down there. You can go through it. Today we'll be talking about the Indigo crisis. तो आज हम भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन डिसरप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ भारत उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं एंड हाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू इट टू प्रोटेक्ट आवर फेलो पैसेंजर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंड. So in the recent times, in December 2025, Indigo has cancelled over 2100 flights. अब इससे क्या हुआ? सप्लाई कट होने की वजह से there was an unprecedented price surge in the flight tickets, due to which the government had to intervene. चलिए अब हम कुछ बातें इंडिगो एयरलाइंस के भी बारे में जान लेते हैं. It is the largest airline in terms of market share, which is operating over 1500 daily flights, which is connecting 75 domestic and 26 international destinations. It has a fleet of over 300 aircraft, which is a very huge number. It has been founded in 2006. And remember that Indigo has revolutionized the Indian aviation because it is based on a low cost model. तो इससे पहले जितने भी एविएशन इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज थी वो एक लग्जरी मॉडल बेस पे काम करते थे. ये पहला ऐसा एयरलाइन था जो कि लो कॉस्ट मॉडल पे काम करता है. लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे ये फोकस करता है. नाउ रिमेंबर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि यही लो कॉस्ट मॉडल है जिसकी वजह से अभी इंडिगो दिक्कत फेस कर रहा है. ऑल्सो रिमेंबर कि इंडिगो के पास अप्रोक्सीमेटली 60% डोमेस्टिक मार्केट का शेयर है इन द इंडियन एविएशन मार्केट, विच टेल्स अस द फैक्ट दैट जो इंडियन एविएशन मार्केट है दैट इज एन ओलिगोपोली. दैट इज एन ओलिगोपोली which is transitioning into a duopoly, जो कि बहुत खतरनाक है जिसकी वजह से ये क्राइसिस हो रहा है. हम आगे देखेंगे समझेंगे. मेरी तरफ से आप लोग को एक टास्क, आपको ओलिगोपोली की डेफिनेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में मेरे को बतानी है और जो भी सही बताएगा उसको हमारी तरफ से लाइक मिलेगा. नाउ व्हाट हैज कॉज्ड दिस क्राइसिस? There were new pilot duty rules which were revised in January 2024 by the DGCA, that is the Directorate General for Civil Aviation, which comes under the Ministry of Civil Aviation. तो इन्होंने कुछ रूल्स रिवाइज किए थे. उन रूल्स का नाम है FDTL रूल्स. FDTL रूल्स which stands for Flight Duty Time Limitation Rules. Flight Duty Time Limitation Rules. तो बेसिकली ये रूल्स क्या थे? These were regulatory changes which reduced maximum flight hours. It also limited crew availability during peak periods. Now इस वजह से क्या हुआ? There was staff shortage. And अभी क्योंकि दिसंबर में विंटर चल रहा है तो विंटर वेदर इश्यूज की वजह से because there were snowfalls, freezing temperatures, तो there was a chain reaction of flight cancellations which were happening recently. And also because of the poor planning of the airline, फ्लाइट जो कि शेड्यूल थी, जितनी भी फ्लाइट शेड्यूल थी वो सारी कैंसिल होने लगी. कुछ इतनी डिले हो गई कि लोगों को उसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा. देयर वाज अ मास फ्लाइट कैंसिलेशन. सिस्टम फेल हो गया पूरा. इंडिगो का सिस्टम गॉट फेल्ड which resulted in over 5000 plus cancelled flights, which affected over 7,50,000 passengers. चलिए अब समझते हैं ये न्यू पायलट रूल्स है, जो ये न्यू एफडीटीएल रूल्स है, ये क्या कहते हैं. They say that a pilot can work maximum
of 10 hours during night shifts, that pilots must have 48 hours of rest each week, and they can only land 2 flights at night per week, which was reduced from 6 flights per week in the night. Now remember the fact that Delhi High Court intervened into this matter. Delhi High Court. They said that कि एयरलाइंस को ये रूल्स तो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. सो दे टोल्ड देम कि 2025 में सरकार उनको बोले कि ये 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट करें. 2 phases. The first phase, which started in 1st July 2025. So this was an easier phase. ये easier phase क्यों था? क्योंकि इसमें क्रू को रेस्ट देने की बात की गई थी पर वीक, जो कि इजीली एयरलाइंस के द्वारा इंप्लीमेंट हो गया. बट द सेकेंड फेज impacted the night time flight and the crew utilization directly. तो इस वजह से क्या हुआ कि because it affected the profitability of the airlines such as Indigo, which is based upon low cost profitable models. लो कॉस्ट पे काम करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जो आपका क्रू है वो कम हायर किया जाता है, उनको ज्यादा काम कराया जाता है, सो दैट कि प्रॉफिट अच्छे से निकल पाए. तो इस वजह से ये क्राइसिस शुरू हुआ. आगे बढ़ा जाए तो ये रूल्स मैटर क्यों करते हैं, ये क्यों रूल्स, ये डीजीसीए को क्या ऐसा हुआ कि ये रूल्स को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी. सेफ्टी बीइंग द अटमोस्ट, ये पायलट्स के रेस्ट को लेकर के ये रूल्स लगाए गए थे, सो दैट द एविएशन इंडस्ट्री इज मोर सेफर, ताकि पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट मिले और दुर्घटना के चांसेस जो हो वो कम हो. अगेन मैंने आपको रेस्ट के बारे में बता दिया है, तो इससे होगा क्या, बेसिकली एक्सीडेंट्स विल लेसन डाउन. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हाउ डिड इट इम्पैक्ट द पैसेंजर्स? देयर वर लॉन्ग वेटिंग क्यूज, ह्यूज वेटिंग क्यूज, and the airports were looking like a bus adda and not an airport. There were so many flight cancellations. There was so much surge in the ticket prices. Yesterday I was checking a price from Delhi to Visakhapatnam. It was around 80,000. 60,000 में आप भारत से लंदन पहुंच जाएंगे. दिल्ली टू अमृतसर की भी फ्लाइट्स बहुत महंगी है, दिल्ली टू चंडीगढ़ की. Such a price hike I've never seen in my entire life. फ्लाइट कैंसिलेशंस इस तरीके से हो रही हैं कि लोग अपनी ही शादी को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर पा रहे. तो डायरेक्टली इट इज इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल. देयर आर मिस्ड कनेक्शंस, the delays are causing a havoc in the lives of the people. Then लोगों के baggages खो जा रहे हैं, mishandle हो रहे हैं because of poor planning of the airlines. This is how it is impacting the passengers. Now what does the government do? It steps in on December 4 and issued the warning to the airlines, and now it has implemented a fare cap on the airlines so as to protect the consumer rights and to protect the consumers from sudden price surges. आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ने ये फेयर कैप्स लगाए हुए हैं. यू कैन सी up to a 500 kilometer distance the maximum price should be 7,500. 500 से 1000 के बीच में 12,000 की मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए और 1000 से 1500 में 15,000 की, एंड above 1500 kilometer the maximum price must be 18,000. Now who made these rules? These rules were made by Ministry of Civil Aviation, and उसके अंदर भी DGCA, which is the Directorate General of Civil Aviation. Now these rules just don't apply to Indigo, they apply to all of the airlines. Now ये rules क्या, ये जो कैपिंग रूल्स है ये क्या चीज इंक्लूड नहीं करते? These don't include airport taxes and fees. ये बिजनेस क्लास टिकट्स को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज प्रीमियम
केबिन सर्विसेज जो होती हैं, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फेयर रेगुलेशंस। जो स्पेशल उड़ान स्कीम, आप उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, एंड जो सही कमेंट करेगा उसको मेरी तरफ से एक लाइक मिलेगा। तो उड़ान की फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट करेंगे। तो जो स्पेशल उड़ान स्कीम की फ्लाइट्स होती हैं उनमें भी ये फेयर कैप्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ये लागू नहीं होता है, ये सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स के लिए लागू हो रहा है। एंड देयर आर चार्टर फ्लाइट्स एज वेल विच आर द प्राइवेट एयरक्राफ्ट, है ना, जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट है उस पर भी ये कैपिंग एप्लीकेबल नहीं है। Now, there has been a show cause notice issued to the CEO of Indigo, who is Peter Elbers, and he must explain in the next 24 hours why no action should be taken against him. और ये ऑपरेशन फेलियर्स के बारे में उनको बताना पड़ेगा। Why does this crisis matter so much? Firstly, it highlights the government's role. So it underscores the essential functions of the government, which is required to maintain infrastructure reliability, which is in utmost interest of the public. It sets an example for future. So हम लोग इस चीज से ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दी दिस ओलिगोपोली विच इज ट्रांजिशनिंग इनटू अ डुओपोली, है ना। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि कंपटीशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि एक इंडस्ट्री में या एक मार्केट में एक कंपनी के ऊपर अगर हम इतना ज्यादा रिलाय होंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। तो जो ये मार्केट ऑल्टरनेटिव्स का लैक है वही आज हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम में डाले हुए हैं। तो हम इस सेक्टर से सीख सकते हैं ताकि दूसरे सेक्टर्स में हमें ये प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो या फिर कोई और सेक्टर हो। सो इट टेल्स अस दैट वी रिक्वायर बेटर प्लानिंग। इट रिवील्स द क्रिटिकल गैप्स इन कंटिजेंसी प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। इट अफेक्ट्स a lot of travelers, ample of travelers it has affected। तो ये क्राइसिस सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी को भी चोट पहुंचाता है। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज वी आर लूजिंग एवरी डे। इससे भारत के टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत चोट पहुंचती है। इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी कम होता है इस सेक्टर में। ऑल्सो द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल्सो डिक्रीज, विच अगेन इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आगे क्या होगा? इंडिगो के ऑपरेशंस जो होंगे वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज बाय डिसंबर 15। जैसे ही फुल क्रू की कैपेसिटी रिटर्न होती है वैसे ही ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। फेयर कैप्स रिमेन, they will remain temporary price control stay in effect until the market stability returns. DGCA will be monitoring this thing. The new safety rules would stay permanent and the industry will learn from the crisis and it must learn from the crisis कि operational improvement हम लोग को बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और ऐसे ही आप कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।